Assalamualaikum students, how are you? Today we have a lecture of Social Studies Book 5. In previous lecture we were discussing the lesson number 3, which is life on desert and the forest regions. Today we will discuss the topic that is animals and peoples. And we were discussing about the desert area, so animals and the people in the desert area. Okay, first of all mention today date here and also the day. Animal and peoples. Desert may be dry and unwelcoming for peoples, but they are not without animal life. However, the desert area is a dry and it is not beneficial for people to live here, but it is not without animal life. It means that there are animals in the desert areas. For example, these animals include lizards, snakes, scorpions, foxes, jerboas, hedgehogs, insects and birds live in the deserts. So these are all the animals which are in the desert areas, which live in a desert areas, जो हमारे पास कुछ इन desert areas में survive करते हैं या live रहते हैं. ठीक है. In Australia there are kangaroos and wallabies. अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कौन कौन से टू एनिमल्स होते हैं? इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर kangaroos and wallabies. Underline these important points. These may come in a true, false, or in the filling the blanks. Okay. Next one is in the Third and Arabian and Sahara Desert, camels are used to transport goods and people. थर्ड डेजर्ट में, अरेबियन डेजर्ट में एंड सहारा डेजर्ट में हम कैमल्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या तो पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर कैमल्स यूज़ करते हैं. बिकॉज इट इज़ अ डेजर्ट एरिया, सो देयर इज़ अ नो ट्रांसपोर्ट लोकेटेड हेयर, सो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़ द कैमल्स. The camel is also known as a sheep of a desert. Camel is known as a sheep of a desert. Which animal is known as a sheep of desert? Camel. The camel is known as a sheep of a desert. Camel को हम sheep of desert कहते हैं. Why we call it sheep of a desert? Because of the few reasons. Number one, it can store for many miles across the sand. इट कैन ट्रैवल फॉर मैनी माइल्स अक्रॉस द सैंड. ये क्या है? हमारे पास मीलों दूर तक क्या है, रेत पर सफ़र कर सकता है, इसलिए हम इसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. ठीक है. इसके अंदर कैपेसिटी होती है. इट कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट डज़ नॉट नीड टू ड्रिंक ऑफन. और इसमें क्या होता है? इसके पास कैपेसिटी होती है, इसके पास एबिलिटी होती है कि कैमल जो होता है वो स्टोर कर सके अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकता है, और इसलिए इसको बार बार पानी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. So these are the reason why we call it a ship of desert. These are two reasons. Another reason is its flat padded feet do not sink into the sand. Flat padded, इसके जो हमारे पास फीट होते हैं, पाँव होते हैं, उनके जो हमारे पास फिंगर्स वगैरह होती है, फिंगर्स तो इनकी नहीं होती, लेकिन इनके पैडेड एक स्क्वेयर शेप में हमारे पास इनके फीट्स होते हैं. ठीक है. इट्स फ्लैट पैडेड फीट डू नॉट सिंक इनटू द सैंड. ये रेत के अंदर क्या होते हैं? अंदर धंस नहीं जाते, बल्कि ऊपर ही रहते हैं. ठीक है. इट्स लॉन्ग आई लैशेज प्रोडक्ट इट आइज फ्रॉम द सैंड. हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड इन द डेजर्ट एरियाज, so camel have the long eyelashes which protect its eyes from the sand. इट कैन आल्सो क्लोज इज नॉस्ट्रिल. इसके पास एक और एबिलिटी होती है कि अपनी नॉस्ट्रिल मीन हमारे पास जो नोज़ को हम नॉस्ट्रिल के यूज़ कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल टू कीप द सैंड आउट. इसके पास एक और एबिलिटी है कि अपनी नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? सैंड जो होती है वो बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती है. इन दीज वेज it is adapted to the life in the desert. It means that camel is adapted to the life of a desert. It has the ability to live in the desert areas. ठीक है. So this is a question why the camel is known as a sheep of a desert. It's because of following reason. It has the ability to store water. It has the ability to travel miles away in a desert, and it has long eyelashes. It has
it has ability to close its nostril to keep the sand out. So these are the reasons why the camel is known as the sheep of deserts. The human population of a desert region is very low. We know that desert is a dry area, so it is not beneficial for the humans to live here. So the population is very low in the desert regions. The harsh climate, lack of vegetation, सब्जियां वगैरह भी नहीं होती हैं, पौधे भी नहीं होते, एंड वाटर, पानी भी बहुत कम होता है, एंड द मोस्टली अनडिवेलप्ड लैंड, और ज़्यादातर जो हमारे पास लैंड है वो क्या होता है, अनडिवेलप्ड होता है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ. तो दैट्स वाई डू नॉट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल हेयर. तो ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता कि वो वहाँ पे रहें. ठीक है. मोस्टली nomadic tribes like the Bedouins in Arabia, the Tuareg in the Western Sahara or the Bushmen of the Kalahari live in these areas. ज़्यादातर यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? Bedouin in Arabia, Tuareg in Western Sahara, ठीक है, and the Bushmen of Kalahari. These are the people of the different areas that live in the desert area, different deserts. Okay. So the next topic is a desert country. अब desert country हमारे पास कौन सी है? Saudi Arabia is a country that lies almost entirely within a desert today. It is one of the most developed countries in the Middle East. अब हमारे पास क्या है? सऊदी अरेबिया है, लेकिन ये ज़्यादातर मोस्टली लाई कहाँ करती है? जहाँ पे हमारे पास डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर ये सऊदी अरेबिया वहाँ पे लाई करता है. लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री टुडे मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री भी कौन सी है? सऊदी अरेबिया. This has been possible because in Saudi Arabia, as in many other deserts countries, there are vast amount of oil. ये डेवलप्ड कंट्री इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑयल की कंसनट्रेशन और अमाउंट ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दे एक्सपोर्ट ऑयल टू डिफरेंट कंट्रीज एंड बिकम रिच कंट्री. Oil is a source of energy for industry, transport, and power. Everyone needs oil. Saudi Arabia sells its oil all over the world, and with the money it gets, it able to improve the life of its people. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑयल की कंसनट्रेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑयल क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को अपना ऑयल जो होता है वो क्या करता है, सेल करता है, और जिसकी वजह से वो अपने लाइफ ऑफ जहाँ वहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. वहाँ से वो पैसा उनको मिलता है जो ऑयल वो आगे सेल करते हैं, तो उसके बाद वो उसकी वजह से लाइफ जो है उन लोगों की इम्प्रूव हो रही है, और ये वेल डेवलप्ड कंट्री में कंसिडर किया जाता है सऊदी अरेबिया को इन द मिडल ईस्ट. In some part of the country there is a cultivation where the land is fertile. There are no large river in Arabia but only a seasonal streams. अब कह रहे हैं कि हमारे पास डेजर्ट एरिया में सऊदी अरेबिया भी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास कल्टीवेशन हो सकती है. कल्टीवेशन ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हमारे पास फर्टाइल लैंड प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरिया नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, सीजनल स्ट्रीम्स हैं जो अपने अपने सीजन्स में रहती हैं. वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज इज़ पम्प्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. और जो अंडरग्राउंड सोर्सेज में हमारे पास ज़मीन के अंदर पानी है उसको क्या किया जाता है, ऊपर लाया जाता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इन अदर प्लेसेस सॉल्टी सी वाटर इज़ डिसैलिनेटेड टू मेक फ्रेश वाटर टू बी यूज बाय द पीपल्स. और कुछ एरियाज़ में ऐसे होता है कि सॉल्टी वाटर को क्या किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उससे फ्रेश वाटर बनाया जाता है और उसको डिफरेंट पीपल्स जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है. वेस्ट वाटर इज़ आल्सो रिसाइकल्ड. और वेस्ट वाटर जो हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्रीज, मिल्स, इंडस्ट्रीज से जो रिलीज़ होता है, तो उस वेस्ट वाटर को क्या किया जाता है, दोबारा रिसाइकल किया जाता है एंड यूज़ फॉर सैनिटेशन एंड इरीगेशन. और उसे डिफरेंट
सैनिटेशन और इरिगेशन के लिए, फॉर क्रॉप्स को पानी देने के लिए और डिफरेंट फसलों वगैरह को पानी देने के लिए वो यूज़ होता है। ओके, पानी irrigation in irrigation in Saudi Arabia, and this is Jeddah, a modern city which is also in Saudi Arabia. वॉकिंग इन द डेजर्ट इज़ अनकम्फर्टेबल। अब हमारे पास पता है हमें कि जो डेजर्ट एरिया है वो हमारे पास क्या है, ड्राई है, तो वहाँ पे वॉकिंग जो है वो अनकम्फर्टेबल है। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, इजीली नहीं हो सकती वर्किंग हमारे पास डेजर्ट एरिया में। It is very hot. Food and other goods have to be brought from distant places. यहाँ मतलब क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, फूड और अदर जो हमारे पास गुड्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और जो दूर दूर से वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से मंगवाए जाते हैं और फिर उनको यूज़ किया जाता है। देयर आर few trees to provide shade. There is a little entertainment. Traveling from one place and another is mainly by roads and not always easy between the cities. However, one can also travel by the air. So यहाँ पे हमारे पास entertainment भी बहुत कम है, ट्रीज़ भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, शेड साया भी नहीं होता यहाँ पे, और ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय रोड की जाती है, और विच इज़ नॉट ईजी बिकॉज द क्लाइमेट इज़ टू मच हॉट। और बिटवीन द सिटी भी हमारे पास ट्रैवलिंग बहुत कम है, और ज़्यादातर और बाय एयर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। In Saudi Arabia, the oil companies have set up well-equipped and comfortable housing colonies with the modern facilities for their work. अब सऊदी अरेबिया में क्या है, जो हमारे पास ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं फॉर देयर वर्कर्स टू फैसिलिटेट दैम, उनको सहूलत देने के लिए, और मतलब उनकी सहूलत के लिए डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई हैं ताकि उनको वहाँ पे सहूलतें मुहैया की जाएँ। ठीक है, today some desert countries such as Saudi Arabia are very rich. Small villages have grown into large cities. Many modern oil-conditioned hotels, air-conditioned hotels, hospitals, school offices and factories have been built in these cities. वो डेजर्ट कुछ ऐसी हमारे पास डेजर्ट सिटीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हमारे पास कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ये वो बहुत रिच है। इसमें क्या है, स्मॉल विलेजेस को बहुत बड़े सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, और एयर कंडीशन होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज बना दी गई हैं। ठीक है, in these cities to facilitate the people live here.